If I'm not wrong, we have chapters 1, that is gravitation. Then there is 4, that is of current electricity. Then there is chapter 5, which is heat. And then there is chapter 6, refraction. Chapter 7, lenses. And chapter 10, space mission. So these are the 6 chapters that have numericals. And what I am going to do here is I am going to solve each and every unsolved numerical on this black screen for you guys to refer. ठीक है, ताकि हमको एक क्लियर आइडिया है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, और हर वो न्यूमेरिकल जो अनसॉल्व है टेक्स्ट बुक का, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में मिलेगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि हो सकता है एक कॉमन वीडियो या फिर चैप्टर वाइज वीडियो जैसे भी फिजिबल हो, मैं वीडियोस को आप तक पहुंचाऊंगा. ओके, so see to it that you utilize them well and do good for your exams. So now, without wasting time, I guess we should start. We are here for session on numericals. I will try to write as neat as possible. बाकी मेरे handwriting से आप लोग वाकिफ हो. And all of this is happening for what? For subject science 1. So stay focused, guys. Give you 100%. Okay. Let's start with the very first chapter. And that is gravitation. Now, as I always say, before solving numericals on any chapter, what is more important is that you are aware with what exactly is needed to be done, and you are aware with the list of formulae, the concepts, the shortcuts, the expressions, everything that are there in the chapter. तो मैं एक एक करके इस चैप्टर में क्या क्या है वो ब्रीफ करता हूँ. So the chapter starts with Newton's law of gravitation. और Newton's law of gravitation क्या बोलता है? It simply says that force is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अब यहाँ पे G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 है मास ऑफ बॉडी 1, m2 है मास ऑफ बॉडी 2, एंड r इज डिस्टेंस बिटवीन देम. इन शॉर्ट, अगर ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, एंड लेट अस से ये m1 है और ये m2 है, ओके, इन दैट केस अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो r है, सो ये दोनों एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट फोर्स? बाय व्हाट फॉर्मूला इज दैट फोर्स गिवन? इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, F is equal to G m1 m2 upon r square. Fine. Moving forward, इस चैप्टर में हमने स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन एस्टेब्लिश किया. हमने बोला है दैट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे स्मॉल g जो है इट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. small g is gravitational acceleration. All right. Then m, capital M, is mass of earth. Because हम लोग अर्थ के लिए कर रहे हैं. अगर कोई और प्लेनेट होता तो उसका मास आता वहां पे. r is radius of earth. r is radius of earth, and capital G, we all know it is universal gravitational constant. Okay. If we are sure about this much, so go ahead guys, this is the formula. ये formula है जो small g और capital G को relate करता है. ठीक है. After that, the next important thing that we need to move towards is the concept of free fall. Okay, a free fall
इस कॉन्सेप्ट का अगर मुझे लिटरल मीनिंग कन्वर्ट करना हो तो ये है कि बॉडी गिर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसका जो एक्सेलरेशन है आप उसको कितना लोगे g. Okay, so body falling with acceleration equal to g and having initial velocity 0 sums up free fall. That is nothing but free fall. लेकिन उसमें से कुछ इक्वेशंस डिराइव होते हैं. ओके, वो कुछ इस तरह से है. So the first equation goes like this: v is equal to g into t, then s is equal to half into g t square, और v square is equal to 2gs. ओके, ये तीनों फॉर्मूले बेसिकली काइनेमेटिकल इक्वेशन से आते हैं. अगर उसके अंदर आप ये सब्स्टिट्यूट करो तो ठीक है. नाउ कंसेप्चुअली अगर मैं बोलने जाऊं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है केप्लर्स लॉज. और केप्लर्स लॉ के जो पहले दो स्टेटमेंट है वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं आता. वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपका प्लैनेट सन के आसपास घूम रहा है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में है. और इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब वो है तो एक फोकस पे सन है और प्लैनेट आपका घूम रहा है आसपास. सेकेंड पॉइंट इज कि अगर एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे सन और प्लैनेट को कनेक्ट करने वाला, तो it sweeps equal areas in equal amount of time. It sweeps equal areas in equal amount of time. जो थर्ड लॉ है उसमें से एक एक्सप्रेशन बाहर आता है. वो क्या बोलता है कि टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस का क्यूब. What is t here? T is time of revolution. What is r here? R is nothing but average distance between sun and planet. Okay, अगर इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, so we'll write down t square is equal to some constant into r cube, because हमको पता है जब proportionality साइन जाती है तो is equal to n constant आता है. So therefore t square upon r cube is constant. Briefly, this is what we are targeting. ये expression उसमें से बाहर निकल के आता है और ये हमको न्यूमेरिकल्स में काम आता है. Okay, so if I am not wrong, this is all that gravitation का concepts are all about. Okay, now we are quite comfortable to proceed with the solving. If you want, you can take a screenshot of this page so that you have it for later on revision. अब ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में ना मेन टास्क जो है वो फॉर्मूला नहीं है. ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में जो मेन टास्क है वो है कैलकुलेशन. दैट इज वेर यू एक्चुअली आर वेरी बैड. दैट इज वेर यू एक्चुअली आर स्कैर्ड ऑफ, राइट. तो हम लोग ट्राई करें कि हम जितना हो सके उस प्रॉब्लम को टैकल करें. एंड आई विल ट्राई टू मेक कैलकुलेशन स्लाइटली इजी फॉर यू ऑल. कई जगह हो सकता है आप कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन याद रख के आगे जाना हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, याद कर सकते हो आप. ठीक है. सो आई विल बी नॉट राइटिंग एनी क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चंस आपके बुक में है, आप वहां से सीधा कॉपी कर सकते हो. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट क्वेश्चन of the unsolved section exercise gravitation is like this. It says the object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम क्रिएट करूंगा कि लेटस से ये मेरा ग्राउंड लेवल है और लेटस से ये हाइट 5 मीटर है. ठीक है. व्हाट आर वी सेइंग हियर, दैट दिस हाइट इज हाउ मच, इट इज 5 मीटर. और एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है और वो यहाँ से अगर गिरता है, नीचे की तरफ आता है, ओके, so this entire journey takes time is equal to how much, 5 seconds. What is the value of g? हमको पूछा गया है इस सिचुएशन के अंदर इस प्लैनेट पे g की वैल्यू क्या है. g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है. नाउ सिंस यहाँ पे उनको हमको बोला नहीं है कि बाबा कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दिया है, दे हैव नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट द ऑब्जेक्ट इज बीइंग थ्रोन. ओके, ऐसा नहीं बोला है, व्हिच मींस हम लोग एज्यूम करेंगे, here we will assume that the initial velocity, okay, u is equal to what, 0. Okay, अब ऐसा सिचुएशन अगर है, so what is the formula? We have formula s is equal to ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्वेश्चन आना चाहिए ये फॉर्मूला मैंने क्यों सिलेक्ट किया, मुझे कहाँ से आइडिया है ये फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है विच मीन्स एस इज गिवन, मेरे को यहाँ पे टी दिया है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुझे क्वेश्चन रीड करते पता चला कि मेरे पास यू भी है। तो अगर मेरे पास एस है, यू है, टी है और एक्सेलरेशन इनका टारगेट है, दे वांट व्हाट दे वांट मी टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो अगर इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में है, इफ आई कैन ऑब्जर्व थिंग्स, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक छोटा सा बच्चा भी क्या बोलेगा कि इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस की जगह आ जाएगा 5 मीटर्स, यू की जगह आ जाएगा 0, तो 0 × 5 बिकॉज टाइम 5 दिया हुआ है। देन देर इज हाफ, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g, और t की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, t स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, राइट। सो सॉल्विंग दिस फर्दर, 5 इज इक्वल टू 0 × 5 is 0, 0 प्लस हाफ इंटू g इंटू 25, that is 5 is equal to 25g अपॉन 2। अब ये 2 इस तरफ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू g। अब इसका आंसर जो है वो आता है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिनको ये स्टेप नहीं समझा, जिनको ये कैलकुलेशन नहीं समझा, वो यहाँ ध्यान दो। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व 10/25 ना। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100/25 इंटू 10⁻⁻1। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। सो नाउ दिस गोज 4 टाइम्स एंड 4 इंटू 10⁻⁻1 क्या आएगा, 0.4 आएगा। इसलिए आंसर आया 0.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मैचेस विद द exact answer given in the book. So that is how your first numerical can be easily solved. Okay, I hope that helped you all. I will move towards question number 2 now. देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, the radius of planet A is half the radius of planet B. So I'll start writing given. It is given that radius of A is half of radius B. So RA is equal to half RB. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। If mass A is ma, so mass of A is given as ma. What will be mass of B पूछा है ना, तो मैं क्या करूंगा, I will say mass of B is equal to x। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी कंडीशन क्या दिया है, so that value of G on B is half of G on A। नो ये कंडीशन दिया है ना, इसको साइड में लिखता हूँ। क्या दिया है कंडीशन, कंडीशन दिया हुआ है G on B is half G on A, that is what they are saying। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्व करने में मुझे हेल्प कौन करने वाला है, सॉल्व करने में मुझे हेल्प ये कंडीशन करने वाला है। This condition is going to help me solve the question. Okay, and I'm supposed to find what, I'm supposed to find mass of B. Okay, now first of all let us try to write down the formula। फॉर्मूला क्या है G का, G का फॉर्मूला है G is equal to G M R square। सॉरी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले से दो बातें निकल के बाहर आती है। एक तो G ऑफ A क्या होगा, कैपिटल G M ऑफ A R ऑफ A का स्क्वायर, और दूसरी बात क्या आती है कि G ऑफ B क्या होगा, कैपिटल G M ऑफ B R ऑफ B का स्क्वायर। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने जो कैपिटल G है उसमें A और B नहीं लिखा, क्यों, बिकॉज यूनिवर्सली कांस्टेंट है, वो वेरी होने वाला नहीं है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस
अगर आप इसको ऑब्जर्व करो और अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, so you'll realize you have two different situations or conditions to compare. और किसकी हेल्प लेंगे हम लोग? इसकी हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हम, ठीक है। सो सी हाउ इट टर्न्स। हमको पता है g ऑफ b इज हाफ g ऑफ a, ठीक है। g ऑफ b की जगह मैं ये डाल दूंगा, तो वो आएगा कैपिटल G एम बी आर बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ, और g ऑफ a आएगा G कैपिटल G एम ए आर ए स्क्वायर। अब ये g और ये g कैंसिल, बिकॉज दोनों जगह सेम है ना। एम बी को हमने क्या बोल दिया? x है। मास ऑफ बी इज व्हाट? मास ऑफ बी इज x, हमने ऊपर लिखा, देखो यहाँ पे। सो वहां आ जाएगा x अपॉन आर बी स्क्वायर हाफ एम ए आर ए स्क्वायर। देयरफॉर x को एक ही जगह रख दो, बाकी सब चीज एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ बचेगा हाफ एम ए, और जो आर बी स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ, और नीचे बचेगा आर ए स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ से ये स्टेप ठीक से समझा हो। मैंने क्या किया, x ढूंढना है ना, तो उसको एक तरफ रख दिया, बाकी सारी चीजें मैं एक तरफ ले गया। तो हाफ को अलग से लिखा, मल्टीप्लाइड बाय एम ए को अलग से लिखा, आरबी अपॉन आर ए किया। आरबी अपॉन आर ए क्यों किया? बिकॉज यहाँ मेरे पास एक कंडीशन है। मैंने इसलिए किया बिकॉज आई कैन सी समथिंग हियर। एक कंडीशन है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो उस कंडीशन से क्या पता चलता है मुझे? फ्रॉम हियर आई कैन से दैट आरबी अपॉन आर ए इज इक्वल टू 2। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट आरबी अपॉन आर ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। और आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, तो आरबी अपॉन आर ए इज 2 अपॉन 1, which means I can write it down like this. Therefore, x is equal to ma upon 2 rb upon ra the whole square. Okay, जो आगे बन जाएगा x is equal to ma upon 2 into 2 का स्क्वायर। Why? Because rb upon ra is 2, है ना। So x is equal to ma upon 2 into 4. Now this goes 2 times. Therefore, x is equal to twice ma, and that is our answer. क्या मिला हमको? कि अपना जो x है, it is going to be 2 times mass of a, मतलब mass of b is 2 times mass of a. Okay, वही हमको प्रूव करना था। देखो अगर आप फाइनल आंसर देखो तो mass of b is how much? It is 2 times mass of a. So these are the first 2 questions. So I hope ग्रेविटेशन के ये 2 फर्स्ट सम्स आपको क्लियरली समझे हैं। Okay, without wasting any time, I'll proceed now for the next sections. Okay, so moving on for the third question now. Let us get our straight line at place. So हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और rather 5C। क्वेश्चन 3 ज्यादा आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे, मैं बोलूंगा क्वेश्चन 5 का C. Mass and weight of an object on Earth are 5 kg and 49 Newton। मतलब मास ऑन अर्थ है ना, तो उसको ME लिखता हूं मैं 5 kg। उसके बाद वेट ऑन अर्थ इज हाउ मच? 49 न्यूटन, ऐसा दिया है। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून? तो पूछा है उसी ऑब्जेक्ट का मास ऑन मून क्या होगा और वेट ऑन मून क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। एज्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। एजम्पशन, यहाँ पे एक एजम्पशन दिया है। क्या एजम्पशन दिया है? ग्रेविटेशन ऑन मून is 1/6 times gravitation on earth, ऐसा assumption करना पड़ेगा, ठीक है। और हमको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। Now this question is not difficult at all. Why? Because we know a fact
that mass is universally constant. मास कैसा होता है? यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है. मतलब आप अर्थ पे हो, मून पे हो, प्लूटो पे हो, कल्याण में हो, डुम्बली में हो, थाने में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो, मास बदलता नहीं है. सो देयरफॉर mass of object on earth will be equal to mass of object on moon will be equal to 5 kg. तो फर्स्ट पार्ट तो मिल गया अपने. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट वेट पे आता हूँ. वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू ग्रेविटी. वेट का फॉर्मूला इज मास इनटू ग्रेविटी. अगर ये वेट का फॉर्मूला है तो वेट ऑन अर्थ क्या रहेगा? मास अर्थ इनटू ग्रेविटी अर्थ. और वेट ऑन मून क्या रहेगा? मास मून इनटू ग्रेविटी मून. ठीक है. अब ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है. ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज वेट ऑन अर्थ कितना दिया है? ये दिया है 49, है ना. और मास मुझे पता है 5. तो यहाँ पे जीई रहेगा. सो व्हाट इज जीई नाउ? 49/5. और अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 9.8 आएगा. दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8. लेकिन अब मेरा टास्क क्या था? मेरा टास्क था वेट ऑन मून निकालना. सो वेट ऑन मून इज मास ऑफ मून. मास ऑफ मून कितना है? 5 kg. इनटू ग्रेविटेशन ऑन मून कितना दिया हुआ है देखो. It is given to be 1/6 of GE. So 1/6 of GE, which is 5 into 1/6 into 9.8. ठीक है. Now we know 5 into 9.8 is 49. तो ये हो गया 49/6. If you solve this further, 6 8 are 48. बचेगा 1 0, 6 1 are 6 बचेगा 4 something. So 8.168 or 8.17 Newton approximately. Okay. So weight on moon कितना आया? 8.17 Newton approximately. I hope this sum is very clear to all of you. It is a very easy question. अगर आप इसमें यहाँ तक भी पहुँचते हो तो भी विल गेट सम मार्क्स बिकॉज आपने आधा पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व किया है. हालांकि दूसरा पार्ट भी बहुत डिफिकल्ट नहीं. इट इज वेरी इजी एक्चुअली. सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन. और 5C बेसिकली. अब मैं 5D पे जाता हूँ. वी आर सॉल्विंग 5D. 5D क्या बोलता है? An object thrown vertically upward. Looking at question 5D, it says an object is thrown vertically upward reaches a height of 500 meters. मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो. एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर. और थ्रो करने से क्या हुआ? वो एक पर्टिकुलर हाइट तक गया. ठीक है. That object has reached certain height. ठीक है. अब उस हाइट के बारे में क्या मेंशन किया यहाँ पे? वो बोल रहे हैं कि जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, that height is how much? It is 500 meters. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. What was its initial velocity? तो यहाँ पे जो u है वो कितना था ऐसा पूछा आपने. ठीक है. दूसरी बात पूछिए हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक. तो मैं एक काम करता हूँ. मैं ना पॉइंट्स को नाम देता हूँ. लेट अस से ये जो पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ है, दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट हैज बीन थ्रोन, लेट दैट पॉइंट बी इक्वल टू a. लेट अस से वो पॉइंट क्या है? a पॉइंट. फिर ऑब्जेक्ट ऊपर तक पहुंचा. लेट अस से ये पॉइंट b है. तो जर्नी कैसा हुआ है बॉडी का? बॉडी का जर्नी is A to B and then back to A. बॉडी A से B गया, B से वापस रिटर्न आया. हमको क्या पूछा है? हमको वेलोसिटी एट A पूछा है. इनिशियल वेलोसिटी एट A. ठीक है ना. और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आप G को कितना लोगे? G को आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज मेंशन. अब if I say in journey A to B, जब बॉडी A से B जा रहा है मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है,
ए टू बी में आप एक्सेलरेशन को क्या लेते हो, हमेशा माइनस जी लेते हो, याद रखना। एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, माइनस जी, जब बॉडी ऊपर जा रहा है। क्यों? बिकॉज जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। स्पीड धीरे धीरे कम होना किसका क्वालिटी है? नेगेटिव एक्सेलरेशन क्वालिटी, ठीक है। सो इन जर्नी ए टू बी, इफ आई राइट डाउन द फॉर्मूला, v square is equal to u square plus 2as। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज मुझे पता है जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से लेकर इस साइड पे पहुंचेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके, अब इस फॉर्मूले में मुझे एडवांटेज क्या क्या मिला, देखो। मेरे पास v है, मेरे पास s है, मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, इसलिए u फाइंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। सो v की जगह आ गया जीरो, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 into minus g into 500, because that is displacement. So 0 is equal to u square minus 2 into 500 is 1000 minus 1000 g. Okay. So u square is equal to 1000 into g, which is how much? G कितना दिया? 10 दिया. So since u square is 10,000, जिसको आप 10 raised to 4 बोल सकते हो, तो u कितना रहेगा? अंडर रूट ऑफ 10 raised to 4 बोले तो 10 raised to 2, which is equal to 100 मीटर पर सेकेंड। सो यू कितना मिला अपने को? यू मिला 100 मीटर पर सेकेंड। लाइक क्रॉस चेक, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड। अब दूसरा पार्ट क्या बोला है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा टोटल टाइम टी इज हाउ मच? टी ए टू बी प्लस टी बी टू ए। नीचे से ऊपर जाने को जितना टाइम लगा और दोबारा नीचे आने को जो टाइम लगा, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। सो ए टू बी पहले फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जर्नी ए टू बी, वहां मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस एट, बिकॉज मुझे पता है v जीरो है। यू मुझे अभी अभी मिला 100 प्लस एक्सेलरेशन आएगा माइनस जी इंटू टी, तो जीरो इज इक्वल टू 100 माइनस जी टी। सो जी टी इज इक्वल टू 100, सो टी इज 100 बाय जी, और ग्रेविटेशन कितना दिया है? 10 दिया है, दैट इज 100 बाय 10। तो टाइम कितना आया? 10। तो टाइम ए बी कितना मिला? 10 सेकेंड मिला। अब एक्चुअली ये बात बहुत ऑब्वियस है कि अगर ये 10 सेकेंड मिला है तो दूसरा भी 10 सेकेंड ही मिलेगा, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं जाऊंगा जर्नी बी ए की तरफ। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नी बी टू ए, व्हाट डू आई नो? आई नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए बी में यू कितना आएगा? जीरो आएगा। सॉरी, बी ए में यू कितना आएगा? जीरो आएगा, बिकॉज जब बॉडी यहाँ से दोबारा गिरना शुरू होगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। सो 500 is equal to 0 into t plus half into g into t का square. So 500 is equal to 0 plus half into 5 into t का, sorry, half into 10, gravity 10 है ना, 5 10 into t का square. So ये गया 5 times. So 500 is equal to 5t square. So t square is 500 upon 5, which is equal to 100। अगर टी स्क्वायर 100 है तो टी क्या होगा? 10 होगा। तो टी बी ए कितना मिला? टी बी ए भी मिला 10 सेकेंड्स। टी बी ए भी मिला 10 सेकेंड्स। तो अगर दोनों 10 सेकेंड्स है तो कॉमन सेंस है, इनका जो एडिशन है वो क्या आएगा? वो आएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। दैट इज द आंसर फॉर 5B. We'll be taking a small gap now. So let us proceed with the further sums. Gravitation के कुछ सम्स हमने अभी किए।
कुछ बाकी है. Let us finish off all of them one by one. So last question we solved was about an object covering some distance and its velocity. D किया हमने. अभी क्वेश्चन 5E देखते चलो. Let us focus on question 5E. Now question 5E says a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. तो मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ये टेबल है और ये वो बॉल है. ठीक है. अब क्या बोला है, जब ये यहाँ से गिर रहा है, so it is falling down up to here and the time taken in this process is how much? 1 second. 1 second में बॉल नीचे गिर रहा है. Assuming g is equal to 10, g को कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको g लेना है. कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. मतलब यहाँ पे अगर u इक्वल टू 0 है, बिकॉज फॉल बोला है ना, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका v कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. ओके. एंड हाइट ऑफ द टेबल, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का h, उसको निकालना है. ओके. सो v इज इक्वल टू u प्लस 80. अगर इक्वेशन यूज किया हमने फ्री फॉल के हिसाब से, u हो जाएगा 0 और a हो जाएगा g. तो we have a new formula, v is equal to u plus gt, which is v equal to gt. ग्रेविटेशन लेना है 10 बिकॉज क्वेश्चन में दिया है, और टाइम लेना है 1 बिकॉज वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो वेलोसिटी इनफैक्ट कितना मिला, पहले वेलोसिटी मिला 10 meters per second. So when the body reaches ground, it will be how much? 10 meters per second. अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की h की. So we know s is equal to ut plus half at square. इस सिचुएशन में s की जगह h डालेंगे, u की जगह 0 डालेंगे, t की जगह 1 डालेंगे, एक्सेलरेशन की जगह g डालेंगे और t की जगह 1 डालेंगे. So h is equal to 0 into 1 is 0 plus half into ग्रेविटेशन की जगह 10, 1 का स्क्वायर 1. So h is 0 plus 5. Therefore h is how much? h is 5 meters. इस तरह हमको दोनों आंसर्स दिखे. हमको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड में मिल गया और हमको h equal to 5 मीटर में मिल गया. That is how both the questions are, both the sub questions are solved. Moving further, the next question we are supposed to see here is question 5F. ठीक है. Question 5F. Mass of Earth and mass R. अच्छा, तो यहाँ पे mass of Earth दिया हमको 6 into 10 raised to 24 kg. उसके अलावा mass of Moon दिया हुआ है. mass of Moon कितना दिया हुआ है? 7.4 multiplied by 10 raised to 22 kgs. Okay. Distance दिया हुआ है. Distance between them, d is given as 3.84 10 raised to 5 kilometers. So 3.84 10 raised to 5 किलोमीटर है ना, उसको अगर मैं 10 raised to 3 आगे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो मीटर हो जाएगा. अब मुझसे पूछा क्या, ये तीनों की हेल्प से आई एम सपोज टू फाइंड आउट f की फोर्स कितना होगा. नो आई नो द फॉर्मूला ऑफ f. f is g m1 m2 r स्क्वायर. अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं जाऊं तो g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ g. व्हाट इज वैल्यू ऑफ g? 6.67 into 10 raised to minus 11. मास ऑफ अर्थ कितना दिया है? 6 into 10 raised to 24. मास ऑफ मून कितना दिया है? 7.4 10 raised to 22. तो न्यूमरेटर वाले सारी बातें वहां आ गई. अब बचता है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या है? डिस्टेंस है. सो 3.84 into 10 raised to 8 लिखूंगा मैं. क्यों 8 लिखा मैंने? बिकॉज 5 और 3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, है ना. so, इसका स्क्वायर. नाउ कुछ अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बातें बता दूं तो 6.7 into 6 आता है 40. 6.67
मल्टीप्लाइड बाय 6 आता है 40, तो 40 इंटू 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 अभी 24 22 46 46 माइनस 11 35, तो ये हो गया 35 अपॉन 3.84 का जो स्क्वायर है वो वेरी क्लोज टू 15 है, वेरी वेरी क्लोज टू 50, ओके, अप्रोक्सीमेटली 14.8 है वो, और 10 raised to 8 इंटू 10 raised to 16 आ जाएगा। अब ये 10 raised to 16 जब ऊपर जाएगा, सो ये स्टेप बन जाएगा 47.4, 35 minus 16 is 19 upon 14.8, so 7.4 ones are 14.8 twos are, उसके बाद 2 ones are 2 20s are, तो फोर्स जो है वो आया 20 10 raised to 19 न्यूटन, which is actually 2 into 10 raised to 20 Newton. So that is our final answer. कितना है फोर्स? 2 10 raised to 20 Newton. So that is 5F. Okay. A, B, C, D, E, F. 6 questions we have solved. अब last question बचता है, which is G, 5G. Okay. So let us try solving 5G. Question 5G. Mass of Earth. तो हमको given क्या है? We are given that mass of Earth is 6 multiplied by 10 raised to 24 kgs. उसके बाद दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 raised to 11 मीटर्स, तो ये मीटर में दिया तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया है फोर्स? इट इज 3.5 इंटू 10 raised to 22 न्यूटन। उससे मास ऑफ सन पूछा है, ठीक है, और जी की वैल्यू तुमको दे रखी है यहाँ पे, हालांकि हम लोग इसको बाय हार्ट कर लेते हैं, विच इज 6.7 10 raised to minus 6.67 को अप्रोक्सीमेट करने बोला, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? F will be G mass of Earth, mass of Sun, distance का स्क्वायर, okay? Therefore, अगर मुझे मास ऑफ सन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ। इस फॉर्मूले को क्या हमने मॉडिफाई किया ताकि हमको ये फॉर्मूला मिलता है। Okay? We are going to use this to solve the question. And why so? Because हमको find ही ms करना है, ये find करना है ना। So मास ऑफ सन एक तरफ, let us substitute values now. फोर्स कितना है? 3.5 10 raised to 22, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना, तो 1.5 10 raised to 11 इसका स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय जी 6.7 10 raised to minus 11 multiplied by ME mass of Earth 6 into 10 raised to 24, ऐसा है ना। 3.5 को अगर मैं लिखूं 35 तो ये हो जाएगा 10 raised to 21, बिकॉज एक डेसिमल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और 10 raised to 11 का स्क्वायर होता है 10 raised to 22, तो इतनी चीजें आ गई न्यूमरेटर में। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो 6.7 + 6 मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अप्रोक्सीमेशन 40 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 13 आएगा। क्यों 13? बिकॉज -11 और 24। ओके, नाउ मास ऑफ सन 5 7s are and 5 8s are, राइट। ऊपर बचता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 21 और 22, 10 raised to 43 हो गया वो, if I'm not wrong, okay।
उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 into 10⁻30 होगा। अब ये 13 जब ऊपर जाएगा तो 43 में से माइनस होगा, so that is as good as 7 into 2.25 into 10⁻30. Why 30? Because 43 में से 13 माइनस हुआ, डिवाइड बाय 8। ओके, अब ये जो कैलकुलेशन है 2.25 इंटू 7 वो हमको करना पड़ेगा। 7 2 ज़ा 14 आता है और 0.25 इंटू 7 इज 1.75 approximately, 1.75, yes. So 14 plus 1.75 is 15.75 into 10⁻30 डिवाइड बाय 8। और 8 को अगर आप डिवाइड करोगे डेसिमल वाइज तो आंसर आएगा 1.96 into 10⁻30। यहाँ पे लिख दूंगा मैं kg, why kg? बिकॉज बात चल रही है मास ऑफ सन की, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऑफ कोर्स केजी होता है। सो हियर लाइज योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरह हमने ग्रेविटेशन के सारे सम्स, लिटरली सारे सम सॉल्व कर लिया। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू। I'll be soon back with other videos, particularly chapter 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 and 10. Okay, see you.